اور آج جس عنوان پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے جناب جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا اور جھوٹی مہدیت کا دعویٰ کرنے والا مرزا غلام قادیانی، جو اپنے آپ کو یہ کہتا تھا کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور میں خدا کا آخری نبی ہوں، خاتم النبیین میں ہوں، اور وہ یہ بھی کہتا تھا کہ میں امام مہدی بھی میں ہوں، یعنی جھوٹی مہدیت کا دعویٰ کرنے والا اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا مرزا غلام قادیانی۔ اس کے کردار کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنی ہیں، انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اور اس کے ساتھ آج ہم جھوٹی مہدیت کا دعوے دار ریاض گوہر شاہی، اس کے متعلق بھی کچھ آپ کی خدمت میں گوش گزار کریں گے۔ ریاض گوہر شاہی نے یہ دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں اور چاند کے اندر میری صورت دکھائی دیتی ہے، چاند میں میری صورت نظر آتی ہے، تو اس کے کردار کے اوپر بھی ہم کچھ روشنی ڈالیں گے۔ انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے آپ اس ویڈیو کا لنک مختلف جگہ کے اوپر شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست ہماری گفتگو سے مستفید ہو سکیں۔ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ جتنے دوست بھی ہماری گفتگو کو سنیں ساتھ ساتھ شیئر کریں، اپنی وال کے اوپر، گروپوں کے اندر، واٹس ایپ کے اوپر، مختلف جگہوں کے اوپر اس کا لنک شیئر کر دیں۔ جی وعلیکم السلام۔ ہمارے دوست ابھی آ رہے ہیں اور تعداد بڑھ رہی ہے۔ آئیے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ایک حوالے سے، اور سب سے پہلے تو ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کون ہے۔ مرزا غلام قادیانی کے بارے میں ہمارے سامعین میں سے ہو سکتا ہے کئی دوست نہ جانتے ہوں، اور میں گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے کمنٹ میں ہو سکتا ہے کہ ابھی مرزئی بھی ہیں، گوہر شاہی کے امتی بھی ہیں، مرید اس کے ہیں، اور ملحدین بھی آئیں گے۔ مختلف قسم کے کمنٹ بھی یہاں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، تو آپ کمنٹس کے اوپر نظر رکھنے سے بہتر ہے کہ ہمارے جانب آپ توجہ رکھیں اور جو ہم گفتگو کرتے ہیں اس کو انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ یہ تصویر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ ہے وہ شخص جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، اور یہ کہتا ہے یہ بندہ کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں اور میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، اور یہ شخص یہ کہتا تھا کہ میں امام مہدی بھی ہوں، اور اس شخص کے اور بھی بڑے دعوے ہیں، صرف یہ ایک دو دعوے نہیں ہیں، بہت زیادہ دعوے۔ یہ بندہ کہتا تھا کہ میں رودر گوپال ہوں، میں جے سنگھ بہادر ہوں، میں کرشن ہوں، میں زرتشت ہوں، میں بدھ ہوں، میں رام ہوں۔ اس کے علاوہ مرزا غلام قادیانی، یہ ہے مرزا غلام قادیانی، اور وہ یہ بھی کہتا تھا کہ میں آدم ہوں، عیسیٰ ہوں، موسیٰ ہوں، یعقوب ہوں، اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ، یہ شخص کہتا تھا کہ میں خود محمد ہوں۔ اور مرزا غلام قادیانی کا یہ کہنا ہے کہ کلمے کے اندر جو لفظ محمد ہے اس سے مراد بھی میں ہوں، یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے مراد میں ہوں، یہ شخص یہ کہتا تھا۔ اور یہ قرآن پاک میرے اوپر نازل ہوا ہے، اور وہ جو پہلے والا قرآن تھا وہ تو اٹھ گیا ہے دنیا سے، وہ تو ختم ہو گیا، اب میری صورت کے اندر اللہ نے دوبارہ محمد کو بھیجا ہے اور میرے اوپر دوبارہ قرآن کو نازل کیا ہے۔ وہ یہ شخص تھا۔ یہ ابتدائی کچھ تعارف مرزا غلام قادیانی کا کروانے کے بعد اب آپ گفتگو سنیں گے تو آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی رہے گی، اور اگر آپ کوئی سوال بھی کرنا چاہیں گے تو آپ ضرور کریے گا۔ اردو کے اندر لکھ کر کمنٹ کریں آپ اور سوال کریں، رومن سے آپ گریز کریے گا۔ یہ جو تصویر ہم نے لی ہے یہ مرزا غلام قادیانی کی سیرت اور کردار کے اوپر اس کے بیٹے نے یہ کتاب لکھی ہے سیرت المہدی کے نام سے، اس کے شروع میں ہی یہ تصویر دی ہوئی ہے۔ اور مرزا غلام قادیانی کا بیٹے کو مرزئی قادیانی لوگ قمر الانبیاء کہتے ہیں۔ یہ تصویر الٹی دکھائی دے رہی ہوگی لیکن آپ کو یہ نظر آ جائے گا، یہ چونکہ میں فرنٹ کیم یوز کر رہا ہوں موبائل کا تو تصویر الٹی شاید دکھائی دے آپ کو۔ تو یہ دیکھیں، یہ قمر الانبیاء، یہ بشیر
बशीर अहमद एम ए को ये कमरुल अंबिया कहते हैं, यानी अंबिया का भी चांद, अंबिया का चांद। कौन है? मिर्ज़ा गुलाम कादियानी का बेटा बशीर अहमद एम ए। ये अपने बाप की सीरत और किरदार के ऊपर ये किताब लिखता है। इसी किताब के अंदर मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की मौत का भी तज़किरा है। वो जो मुसलमान कहते हैं ना कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी लटरीन के अंदर, बैतुल खला के अंदर मरा था पोटियाँ करते हुए और वबाई हैज़े का शिकार होकर, तो वो सब हवाला पूरी तफसीलात इसमें दी हुई है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये 26 मई आने वाला है, मई का महीना 26 मई को मिर्ज़ा गुलाम कादियानी का इंतकाल हुआ था, पोटियाँ करते हुए, उल्टियाँ टट्टियाँ वगैरह करते हुए। तो ये गलाजत के अंदर लुथड़ कर मिर्ज़ा गुलाम कादियानी दुनिया से चल बसा। पूरे अहवाल इस किताब में इंशाल्लाह 26 मई के करीब हम प्रोग्राम करेंगे, उसमें आपको मज़ीद और भी हवालाजात के साथ वो मिर्ज़ा की मौत के हवाले से मुकम्मल गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह इसी पेज के ऊपर। आज चूँकि हमारा उन्वान ये है कि ये ठर्क जो किया करता था, ठर्कबाजी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी, इसके हवाले से आपकी खिदमत में कुछ चीज़ें रखनी हैं। और आप गौर करिएगा कि एक शख्स की ज़ात और किरदार इस किस्म का है, उसको एक शरीफ इंसान नहीं आप कह सकते, शरीफ इंसान कि यार ये बड़ा शरीफ इंसान है। लोगों ने उसको नबी बनाया हुआ है, लोगों ने उसको इमाम मेहदी बनाया हुआ है। ये जमात अहमदिया के लोगों ने, जो अपने आप को अहमदी कहते हैं, हम उनको कादियानी और मरज़ई कहते हैं। यहाँ मरज़ई भी बैठ के हमारी गुफ्तगू सुन रहे होंगे, क्योंकि उन तक लिंक पहुँचा दिया गया है, वो हमारी गुफ्तगू सुन रहे होंगे और बहुत कुछ यहाँ बोलेंगे। लेकिन बड़े दर्द के साथ ये मैं एक मैसेज दे रहा हूँ, पैगाम दे रहा हूँ कि तवज्जो करें अल्लाह के बंदो। आप अकल रखते हैं, फ़ाहम रखते हैं, शऊर रखते हैं, और फिर आपने ये सारी चीज़ें देखने के बाद भी आप कहते हैं हम, ये हमारा नबी है, ये हम इसको मसीह मऊद कहते हैं, मसीह मऊद साहब हैं। ये एक शख्स को आप शरीफ इंसान नहीं कह सकते, उसको आपने नबी बना दिया। कुछ तो अकल करें, सोचो विचार करें। आपके साथ हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। सिर्फ आपको ये हम बताना चाहते हैं कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्तनत नबूवत के ऊपर डाका जनी की, मेरे आका की सल्तनत नबूवत के ऊपर डाका जनी की। उस शख्स को आप लोगों ने नबी बना दिया। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी अपने पास नौजवान लड़कियों को रखा करता था। मैं अहमदी हजरात से मुखातब हूँ, क्या आपको ये चीज़ पहले पता थी? मिर्ज़ा गुलाम कादियानी नामहरम, जिसको गैर महरम कहते हैं, गैर महरम खवातीन, लड़कियां, नौजवान लड़कियों को अपने पास रखता था। 1 2 3 4 नहीं, 10 लड़कियां उसने अपने पास रखी हुई थी। ये जो बूढ़े बूढ़े आपको मरज़ई नजर आते हैं अहमदी हजरात, इनकी दादियां और नानियां मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की खिदमत में रहा करती थी। शरीयत इस्लामिया के अंदर ये चीज़ जायज़ नहीं है, ये बात ज़हन में रखिएगा। नबी को जायज़ नहीं, नबी को भी ये चीज़ जायज़ नहीं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी औरतों से पर्दा करते और हमें भी उन्होंने तरबियत की, तालीम की कि ख़वातीन से पर्दा करना है। औरत की आवाज़ तक से हमें बचने का हुक्म है। औरत के जो लिबास है, उसका बदन है, हर एतबार से उसको देखने से शरीयत इस्लामिया हमें मना करती है। ये नबी की बात कर रहा हूं। तो आम सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, फिर फुकहा हैं, उलमा हैं, औलिया अल्लाह हैं, उनकी तो बात ही अलग है। ये नबी ने जब ये आप खुद अमल करके बताया, तो ये सारे के सारे जो है ना अमल क्यों नहीं करेंगे? अगर एक वली कामिल, जिसको हम कहते हैं वली कामिल, वली अल्लाह का वली, वो जब तक कुरान और हदीस के ऊपर अमल नहीं करता, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों के ऊपर अमल नहीं करता, उसको वलायत नहीं मिलती। वो शैतान का वली तो हो सकता है, वली शैतान तो हो सकता है, वलीउल्लाह नहीं हो सकता। वो कैसे हो सकता है कि सुन्नतों का वो पाबंद नहीं है? मेरे आका की सुन्नतों के ऊपर अमल करके तो वलायत मिलती है।
وہ راز اسرار ملتے ہیں, اللہ کے پردے اٹھتے ہیں. تو یہ کیسا ولی ہے کہ جو کہتا ہے کہ میرے سامنے یہ کوئی شریعت کوئی اہمیت نہیں رکھتی, اور وہ ولایت کا دعویٰ کر رہا ہے, اور پھر ولایت سے اٹھ کر وہ مرزا صاحب تو کہتے ہیں میں نبی ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں, میرے اوپر وہی نازل ہوتی ہے. تو بہرحال یہ چیزیں سمجھنی چاہیے, گفتگو لمبی ہو جائے گی. مرزا غلام قادیانی نے اپنے پاس ایک لڑکی رکھی ہوئی تھی, اور وہ اس کا نام تھا ڈاکٹرانی. یہ سیرت المہدی یہ والی ہی کتاب, اس کے صفحہ نمبر 631 اٹھا کر دیکھیں, آپ کو واقعہ ملتا ہے. اور یہ آپ کتاب مرزا غلام قادیانی کی جو ویب سائٹ ہے, جماعت احمدیہ کی جو ویب سائٹ ہے, مرزائیوں اور قادیانیوں کی جو ویب سائٹ ہے الاسلام.org, اس کے اوپر بھی یہ دیکھ سکتے ہیں. یہ کتاب ہم نے گھر میں نہیں چھاپی, یہ آپ کے پریس کی چھپی ہوئی ہے, آپ کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے. اس کے صفحہ نمبر 631 کے اوپر ایک واقعہ لکھا ہے. کہتے ہیں ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ ڈاکٹر نور محمد صاحب لاہوری کی ایک بیوی مرزائیوں سے جب یہ بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں تھی جو رہتی تھی, چھوٹی چھوٹی بچیاں, دودھ پیتی بچیاں, وہ مرزا جی کے پاس رہتی تھی, خدمت کرتی تھی, طفل تسلیاں اپنے آپ کو دینے کے لیے 100 بہانے. مرزا صاحب بھی طویلیں کیا کرتے تو ان کی امت بھی طویلوں کے انبار لگا دیتی ہے, طویل در طویل. مرزا کو چھپانا ہے بس, کسی طریقے سے مرزا چھپ جائے. یہ بیوی ہے, ایک بیوی ڈاکٹرانی کے نام سے مشہور تھی. وہ مدتوں قادیان آ کر حضور کے مکان میں رہی اور حضور کی خدمت کرتی رہی. اس بیچاری کو سل کی بیماری تھی. جب وہ فوت ہو گئی تو اس کا ایک دوپٹہ حضرت صاحب نے یعنی مرزا غلام قادیانی نے دعا کے لیے یاد دہانی کے طور پر یاد دہانی کے لیے بیت الدعا کی کھڑکی کی ایک آہنی سلاخ سے بندوا دیا. اس کا دوپٹہ چنی جو اوپر لیتی تھی وہ ڈاکٹرانی, مرزا جی جہاں بیٹھ کر اپنی عبادت کرتے تھے, اپنی کتابیں لکھتے تھے, بیت الدعا اس کا نام تھا, اس کے وہ کھڑکی کے اوپر ایسے بندوا دیا. یہ دوپٹہ کیا کہتا ہے آپ کو, کیا سمجھتے آپ مرزائی صاحبان قادیانی احمدی حضرات؟ وہ دوپٹہ جو مرزا جی نے بندوایا تھا کس لیے بندوایا تھا؟ وہ تبرک کے لیے بندوایا تھا کہ یہ بڑی اللہ کی ولیہ تھی, اس کا دوپٹہ ادھر لٹکا رہے گا تو مجھے بھی جو ہے نا میرے بھی درجوں میں اضافہ ہوگا اور میری روحانیت میں اضافہ ہوگا. پہلا تو اس نے یہ کام کیا کہ وہ نوجوان, وہ خاتون, وہ غیر محرم خاتون مرزا جی کے پاس آ کے مدتوں رہتی ہے, خدمت کرتی ہے, پھر اس کے عشق میں گرفتار ہو جاتے ہیں. اور جناب اس کا دوپٹہ, اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی جان نہیں چھوڑی, اس کا دوپٹہ اٹھا کر آہنی سلاخ کے اوپر بندوا دیا کہ آتے جاتے یار نہیں تو چلو یار کی چنی صحیح, اس چنی کی زیارت ہی کرتے رہیں گے, اسی سے دل پشوری ہوتا رہے گا ہمارا. آپ اس پر کیا تبصرہ کرتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بھائی لوگوں ہماری باتیں آپ کو لگتی ہیں کڑوی, آپ کہتے ہیں بڑی یہ کڑوی بات کو سمجھے تو صحیح کم از کم. اس میں کیا روحانیت جھلکتی ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ روحانی باتیں, چھوٹی سی بات ہوتی ہے, آپ کہتے ہیں روحانی باتیں. یہ کون سی روحانی باتیں؟ آئیے کچھ اور سنیے. ذکر حبیب کے اندر مفتی صاحب ہیں آپ کے, مفتی محمد صادق صاحب, انہوں نے ذکر حبیب کتاب لکھی ہے, اس میں مرزا غلام قادیانی کے واقعات کو کوٹ کی ہے. یہ وہی مفتی ہے جو کہ مرزا غلام قادیانی کا دہنا بازو تھا, مرزائیوں کا مفتی. مرزا غلام قادیانی نے جب آپ نے 313 صحابی الگ کیے تھے, کہا کہ یہ میرے 313 صحابی ہیں, ان میں سے ایک یہ بھی تھا مفتی محمد صادق. اس نے ذکر حبیب کتاب لکھی, اس کے صفحہ نمبر 38 کے اوپر ایک مرزا غلام قادیانی کا واقعہ لکھا ہے, اور یہ کتاب آپ کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے. کہتا ہے جناب مفتی صادق,
हजरत मसीह मऊद के अंदरूने खाना एक नीम दीवानी सी औरत बतौर खादमा के रहा करती थी। नीम दीवानी ये मिर्जा कादियानी को बचाने का एक तरीका है। नीम दीवानी मतलब थोड़ी थोड़ी पागल एक औरत मिर्जा गुलाम कादियानी के घर में रहा करती थी। पहले तो ये बात मैं इधर कंप्लीट करूं कि वो नीम दीवानी हो चाहे पूरी दीवानी हो, क्या शरीयत इजाजत देती है कि आप किसी पागल लड़की को, खातून को, माई क्यों नहीं हो, वो बूढ़ी हो, 100 साल की क्यों ना हो, उसको अपने घर में आप उसको रखें? बतौर खादमा के आगे वो लिखता भी है, बतौर खादमा के। वो नीम पागल थी, वो खिदमत करने की तो काबिल नहीं थी, उसको तो खुद खिदमत की जरूरत थी, उसको तुमने खिदमत के लिए रखा। बतौर खादमा के रहा करती थी, खिदमत किया करती थी मिर्जा जी की। आगे लिखता है, एक दफा उसने क्या हरकत की कि जिस कमरे में हजरत साहब बैठकर लिखने पढ़ने का काम किया करते थे, वहां एक कोने में खुरा था। चूंकि मिर्जा जी को दिन और रात में 100 दफा पेशाब आता था और पेचस वगैरह बहुत किया करते थे। ये हवाले मैंने बताए हुए हैं, आपको हवाला चाहिए होगा तो मैं फिर बता दूंगा, कोई बात नहीं। ये किताबों में लिखा हुआ है, आपकी सारी किताबों में लिखा हुआ है कि मिर्जा जी को पेशाब बहुत ज्यादा। तो मिर्जा जी ने अपने जहां पर बैठकर लिखा पढ़ा करते थे उसके कोने में वो लटरीन भी बनवाई, खुरा बनवाया हुआ था कि चलो यहां बैठ के फारग हो जाएंगे। तो कहते हैं लिखने पढ़ने का काम करते थे, वहां एक कोने में खुरा था जिसके पास पानी के गड़े रखे थे। वहां अपने कपड़े, वो औरत, वो नीम दीवानी जिसको लिखा है इन्होंने, वहां अपने कपड़े उतार कर और नंगी बैठकर नहाने लग गई। नंगी बैठकर कपड़े उतार कर नहाने लग गई। हजरत साहब अपने काम तहरीर में मसरूफ रहे और कुछ ख्याल ना किया। वाह जी वाह, क्या रूहानी बात है। उनको पता ही नहीं हुआ कि मेरे उधर हो क्या रहा है, काम में मसरूफ रहे। उसकी असल वजह आगे लिखी हुई है, वो आगे खुद लिखता है हकीम सादक, ये मुफ्ती सादक कहते हैं, और कुछ ख्याल ना किया कि वो क्या करती है। जब वो नहा चुकी तो एक और खादमा, चूंकि मिर्जा कादियानी ने बहुत सी लड़कियों को अपनी खिदमत के लिए मामूर किया था, रखी हुई थी। एक और लड़की आ जाती है, एक और खादमा आ जाती है। एक और खादमा इत्तफाकन आन निकली। उसने उस नीम दीवानी को मलामत की कि हजरत साहब के कमरे में उनकी मौजूदगी के वक्त तूने ये क्या हरकत की। तो उसने हंस कर जवाब दिया। वो जवाब ये था, सुने, वो बड़े बड़े अल्फाज में लिखा हुआ है ये जवाब। इनू की विखदा है, पंजाबी में वो कहने लगी, इनू की नजर आंदा है, ऐ ते अन्ना है। वो खादमा को भी पता था। वो आगे लिखा, यानी उसे क्या दिखाई देता है, आगे लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है। ये आप खुद किताब उठाकर देखे, ये लिखा हुआ है सारा। इनू कुछ विखदा है, यानी उसे क्या दिखाई देता है। वो खादिमात को भी पता था कि ये अंधा है, जिसको लोगों ने मसीह मऊद बना दिया है, इमाम महदी बना दिया है, अपना नबी और रसूल बना दिए। नौजवान लड़कियों को उसने रखा हुआ है अपने पास, नंगी होकर वो नहा रही हैं। एक दो नहीं, वो लाइन लगी हुई है लड़कियों की। ये मरजाइयों की दादियां और नानियां मिर्जा गुलाम कादियानी की खिदमत में रहा करती थी। आइए 2-4 हवाले और भी सुनते जाएं। मिर्जा गुलाम कादियानी को चूंकि बहुत ज्यादा पेशाब आता था, तो उसने लोटा उठाने के लिए एक लड़की को रखा हुआ था। लोटा उठाने के लिए, लोटा उठाने वाली लड़की। सीरतुल महदी, ये वाली सीरतुल महदी के सफा 214 के ऊपर हमें एक वाकया मिलता है। 214 के ऊपर ये सीरतुल महदी की जिल्द नंबर 2 में, जिल्द 2, ये 2 जिल्दें, जिल्द 2 के सफा 214 के ऊपर ये ले जी, ये सफा, ये हाईलाइट इबारत। कहते हैं जी, सफिया बेगम साहिबा शाहजहांपुरी अहलिया, ये भी अहलिया है, बीवी है।
शेख गुलाम अहमद साहब नो मुस्लिम वाइज मुजाहिद ने बवास्ता लजना अमानुल्लाह कादियान बदरिया तहरीर बयान किया कि एक दफा हजूर ने फरमाया कि सफिया गर्म पानी का लोटा पखाना में रखो। ये खिदमत करती थी, ये सफिया लोटा उठाने वाली रखी हुई थी मिर्जा गुलाम कादियानी ने अपने पास। और उसको कहने लगे हैं मिर्जा जी के सफिया बेगम लोटा तो पानी का रखो, पेशाब आ गया है मुझसे कुछ तेज पानी ज्यादा पड़ गया। यानी गर्म पानी उस बिचारी ने, उसकी तवज्जो ना रही तो गर्म पानी कुछ ज्यादा ही उसने कर दिया। जब हजूर बाहर आए तो मुझे कहा हाथ की पुष्ट करो। उस लड़की को कहने लगे अपनी हाथ की उल्टा करो। अच्छा उल्टा किया और पानी डालना शुरू किया और हंसते भी जाते थे। हजरत जी ने लोटा उसके हाथ के ऊपर पानी डालना शुरू किया और ऊपर से दांत निकाल रहे थे, हंस रहे थे। वाह जी वाह, हंसना मन है, हंसना कब्र में अंधेरा लाता है, दिल को सख्त करता है, दिल को मुर्दा करता है। ये मिर्जा जी थे, हंसते जाते थे और उस गैर महरम लड़की को के हाथ के ऊपर पानी डाल रहे हैं। फिर फरमाया पानी तेज लगता है, पानी ज्यादा गर्म हो गए। मैंने कहा लगता तो है। आपने फरमाया इतना तेज पानी ना रखना चाहिए, आइंदा से जब लोटा पानी का गर्म करके रखो तो ज्यादा गर्म ना करना। गैर महरम खातून को रखा हुआ है, गैर महरम लड़की को रखा हुआ है मिर्जा गुलाम कादियानी ने अपने पास खिदमत के लिए। कौन सी शरीयत में ये जायज है? ये हमें कोई मर्ज़ी बताए। मिर्जा गुलाम कादियानी ने एक और खातून को अपने पास खिदमत के लिए रखा था। सीरतुल महदी के सफ़ा नंबर 700, ये किताबें मेरे पास रखी हैं, मैं वैसे ही पढ़ के सुना देता हूँ। 722 के ऊपर हवाला है जनाब, उसका नाम है जनाब एक बूढ़ी मुलाजमा मसमात बानो थी। बानो हम इसको बानो रजाई वाली कहते हैं। वो एक रात जब खूब सर्दी पड़ रही थी, हजूर को दबाने बैठी। चूंकि वो लिहाफ के ऊपर से दबाती थी, इसलिए उसे ये पता ना लगा कि जिस चीज को मैं दबा रही हूँ वो हजूर की टांगे नहीं हैं, बल्कि पलंग की पट्टी है। थोड़ी देर के बाद हजरत साहब ने फरमाया बानो आज बड़ी सर्दी है। आज बानो कहने लगी हाँ जी, तद्दे ते तुहाडियां लत्तां लकड़ी वांग होइयां पईयां ने। वो पंजाबी में कहती है, यानी जी हाँ, जब भी तो आपकी लातें लकड़ी की तरह सख्त हो रही हैं। मिर्जा गुलाम कादियानी नबूवत का दावा किया, कहा मैं इमाम मेहदी हूं। खवातीन को, गैर महरम खवातीन को अपने पास रखा हुआ है खिदमत के लिए। टांगे दबवा रहे हैं, जिस्म का मसाज करवा रहे हैं, सर दबवा रहे हैं, लोटा उठवा रहे हैं। घर में चौकीदारी के लिए उनको खतरा था कि मुझे कोई हमला ना कर दे मेरे ऊपर। चौकीदारी के लिए खवातीन रखी हुई थी, जो ड्यूटियां लगी हुई थी, ड्यूटियां बदलती थी अपने कमरे में। आइए हवाला सुने। यहाँ पाँव दबाने वाली एक कुछ खवातीन है, और ये सीरतुल महदी के सफ़ा नंबर 214 के ऊपर ये वाक़या लिखा है। बरकत बीबी साहिबा, जो कि अहलिया है हकीम मौलवी रहीम बख्श साहब मरहूम साकिना तलवंडी, ने बवास्ता लजना मानुल्लाह कादियान बदरिया तहरीर बयान किया कि एक दिन आप लेटे हुए थे और मैं पाँव दबा रही थी। वो बरकत बीबी जो हकीम मौलवी रहीम बख्श की बीवी थी, वो कहती है कि मैं मिर्जा कादियानी के पाँव दबा रही थी। मिर्जा ने रोका नहीं कि तू क्या कर रही है, छोड़ दे, ये गुनाह है, ये शरीयत इस्लामिया ने मना किया है, बीबी जा पर्दा कर मुझसे। मिर्जा ने रोका नहीं है। वो आगे कहती है जब मैं जाने लगी तो हुजूर ने अम्मा जान को फरमाया कि बरकत को वाई बर्न दे दो, ये सुन लें। वो पास टांगे बैठी दबा रही थी, साथ साथ मिर्जा जी उससे पूछ भी रहे थे,
हाँ बीबी, तुम्हें फिर हैज निफास आता है कि नहीं आता? तुम्हें हैजो निफास भी आता है कि नहीं आता? टाइम पर आता है कि नहीं? कोई लिकोरिए का मरज तो नहीं है तुम्हें? और तुम्हारी रहमदानी तो ठीक है। ये मिर्जा कादियानी पूछ रहा है उससे, वो आगे से वो फिर खातून है, वो बताती है मुझे कुछ मर्ज है। मिर्जा कादियानी कहता है नुसरत जहां को, बेगम को बुला के कहता है ये बरकत को वाई बर्नम दे दो, इसके रहम में दर्द है, इसके रहम में दर्द है। और आगे ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट वाई बर्नम लिक्विड, एक दवा रहम की इस्लाह के वास्ते होती है। इस पर क्या रूहानी बातें, क्या तबसरा करें, क्या तबसरा करेंगे मोहतरम आप इसके ऊपर? आगे सुने। रात को जो खिदमत करती थी, वो जो करती थी रखवाली, चौकीदारा करती थी, उनके बारे में भी सुन लें। सीरतुल महदी के सफ़ा 725 के ऊपर लिखते हैं माई रसूल बीबी साहिबा बेवा हाफिज हामिद अली साहब मरहूम ने बवास्ता मौलवी अब्दुर्रहमान साहब जट मौलवी फाजल मुझसे बयान किया कि एक ज़माना में हज़रत मसीह मऊद यानी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के वक्त में मैं, वो औरत कहती है मैं, यानी रसूल बीबी कहती है कि मैं और अहलिया बाबू शाह दीन की बीवी रात को पहरा देती थीं। और हजरत साहब ने फरमाया हुआ था कि अगर मैं सोते में कोई बात किया करूं तो मुझे जगा देना। एक दिन का वाकया है कि मैंने आपकी ज़बान पर कोई अल्फाज जारी होते सुने तो आपको जगा दिया। उस वक्त रात के 12 बजे थे। इन अयाम में आम तौर पर पहरा पर माई फज्जो मुंशियानी अहलिया मुंशी मोहम्मद दीन गुजरावाला और अहलिया बाबू शाद दीन होती थीं। वो कहती है मजीद और भी कुछ लड़कियां थीं कि जो कि मिर्जा कादियानी की रखवाली किया करती थी, चौकीदारा किया करती थीं। ये चंद हवाले हमने आपकी खिदमत में दिए। अभी तो सर दबाने वाली पड़ी है, ज़ैनब बीबी की जनाब खिदमत पड़ी हैं, और भी वो सदरी बेगम भी पड़ी है। अभी तो कुछ और भी हवाला मेरे पास है, लेकिन वो इतने काफ़ी है, इतना काफ़ी है। वो दाल को अगर आपने चखना है ना तो देग में से एक दाना भी चख लेंगे तो इतने काफ़ी है। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी इस पर्दे को नहीं मानता था। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की अपनी बेगम नुसरत जहां बेगम भी मर्दों के साथ मिलजुल के रहती थी और लोगों ने उसको रोका भी। मिर्ज़ा जी ये आपकी बेगम नौजवान लड़की है, गैर महरम मर्दों के सामने आती जाती है, तो इसको ज़रा रोका करें। तो मिर्ज़ा जी ने कहा कि जाओ जी, मैं ऐसे पर्दे का कायल नहीं हूँ। ये सीरतुल महदी के सफ़ा 56 के ऊपर उठाकर देखें। मिर्ज़ा कादियानी कहते जाओ जी, मैं ऐसे पर्दे का कायल नहीं हूँ। ये मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की सीरत और किरदार के हवाले से कुछ चीज़ें हमने आपकी खिदमत में। पता है कि मुकालमा जब होगा, डिबेट होगी, तो इसकी रिकॉर्डिंग होगी, तो ये लोग, हम लोग यानी कि रिकॉर्ड करके दुनिया को दिखाएंगे तो हमारी हकीकत सामने आ जाएगी खुल के। इसलिए ये डरते हैं, मरज़ई भी डरते हैं, ये गोहर शाही भी डरते हैं, और इस कबील के जितने लोग हैं ये डरते हैं, घबराते हैं। हमने इनको बड़ी दफ़ा मुनाजरे के लिए, मुकालमे के लिए स्काइप के ऊपर आमने सामने आकर बात करने की दावत दी है, लेकिन ये सामने नहीं आते। फेसबुक के ऊपर टिप लगे होते हैं। ये असल में बच निकलने का एक तरीका होता है, चोर दरवाज़ा इन्होंने निकाला हुआ है। आईडीज बदलते हैं, नाम मुसलमानों जैसे ये रखते हैं। कभी ये तारी बनेंगे, कभी चिश्ती बनेंगे, कभी सोरवर्दी बनेंगे, कभी कादरी बनेंगे। ये असल में इनकी अपनी आईडीज़ नहीं है, ये मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ये आईडीज़ बदलते हैं, नाम रखते हैं उस किस्म के। कभी अपनी तस्वीर के ऊपर भी एक मौलवी की तस्वीर लगा लेंगे, आवाज़ आप तक पहुंचा सकते हैं और अगले की आवाज़ को सुन सकते हैं। तो ये एक पैगाम है और ईमान के बचाने का ये एक पैगाम है, तो इसको शेयर करें।
हमारा जो चैनल है ख़त्म नबूवत टाइम्स यूट्यूब के ऊपर, उसको लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें। तमाम दोस्त जितने भी सुन रहे हैं सबसे गुजारिश की जाती है ख़त्म नबूवत टाइम्स को, जो कि फेसबुक के ऊपर ये यूट्यूब का जो चैनल है हमारा, उसको सब्सक्राइब लाजमी करें। हमारी वीडियोस को शेयर किया करें, देखा करें, अपनी अच्छी राय दिया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें, ये सारे काम किया करें आप, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप मौजूद हैं तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि ये काम करें। अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत करे। बहुत फितने का दौर है, फितना दर फितना दर फितना दर फितना। तो जहाँ कहीं भी रहें दीन इस्लाम के लिए आवाज़ बुलंद करें, इन झूठों को बेनकाब करें, हर सतह पर इन झूठों को बेनकाब करें, हर सतह पर जहाँ भी आप रहें इन झूठों को बेनकाब करें। जी बहुत शुक्रिया। अशरफ कादरी अत्तारी भाई कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हमारे सब की ईमान की हिफाजत फरमाए, ईमान पर हमें खात्मा अता फरमाए, और सुलहाए उम्मत जो हैं उनका कुर्ब अता फरमाए, औलिया अल्लाह का कुर्ब अता फरमाए, अल्लाह के वलियों के साथ हम नशीनी अता फरमाए, नेक लोगों के साथ उठना बैठना अता फरमाए। नेक लोग अब भी हैं दुनिया में, उनके साथ उठा बैठा करें, उलमा के पास आया जाया करें, उलमा से दूर ना रहें। जो महाफिल होती हैं, मजलिसें होती हैं दीन की, उनमें आया जाया करें। अब तो माशाल्लाह हमारे दावत इस्लामी जो अजीम रूहानी तंजीम है मुसलमानों की, उन्होंने तो ऐसा एहतमाम किया कि हफ्तावार वो इज्तिमा करते हैं लोगों की तरबियत के लिए। हर इलाके में होते हैं ये इज्तिमाआत दावत इस्लामी के। इन इज्तिमाआत में लाजमी आया जाया करें, ईमान महफूज होगा इंशाल्लाह। असल में गुनाह करते हैं तो दिल के ऊपर वो काला धब्बा पड़ जाता है, धब्बा दर धब्बा 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 पड़ता रहता है, वो दिल काला हो जाता है। तो इस दिल को ज़रूरत है कि कुछ इसको खौफ दिलाया जाए अल्लाह का। तो जब हफ्ते के बाद आप बातें सुनेंगे अल्लाह की, अल्लाह वालों की हम नशीनी इख्तियार करेंगे, तो दिल का वो जंग उतरेगा, वो धब्बे दूर होंगे, दिल सफ़ेद होगा, रूहानियत झलकेगी फिर इंशाल्लाह। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अपने वलियों का कुर्ब अता करे, उलमा का कुर्ब अता करे, उलमा की हम नशीनी अता फरमाए, इस्लाम के लिए डटें, इस्लाम के लिए खड़े हों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए खड़े हों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए लड़ें आप। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा ख़त्म नबूवत फोरम का मुंतज़िम आला आपकी खिदमत में हाज़िर था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।